اور میں ہوں ہیرا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کرونا وائرس سے متعلق۔ کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی ہے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے مزید 87 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 9250 ہو گئی۔ مزید 3197 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,54,673 ہو گئی۔ 4 لاکھ مریض صحت یاب، 40,922 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,179 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,30,706، سندھ میں 2,02,983، خیبر پختونخوا میں 54,448، بلوچستان میں 17,880، گلگت بلتستان میں 4,814، اسلام آباد میں 35,905 جبکہ آزاد کشمیر میں 7,937 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 62,64,134 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,075 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,04,501 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,486 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد وائرس کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس بات کی اطلاع دی بعد خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ صدارتی دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مائکرو آئندہ ایک ہفتے کے لیے قرنطینہ میں رہیں گے۔ ان میں کرونا کی تشخیص جمعرات کو ہوئی، البتہ مائکرو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے جا رہے ہیں۔ فرانس میں کرونا کی وجہ سے اب تک تقریباً 60,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس وبائی مرض سے دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے ملک گیر سطح پر رات کا کرفیو نافذ ہے۔ مزید بھی بات کریں گے کرونا کی تو دنیا بھر میں سے 16,81,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 7,60,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 3,20,000، برازیل میں 1,85,000، بھارت میں 1,45,000، میکسیکو میں 1,17,000، روس میں 50,000، فرانس میں 60,000 اور سعودی عرب میں 6,101 اموات۔ دنیا میں کرونا کے 5,32,75,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,10,49,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,20,845 اموات ہو چکی ہیں اور 1,78,88,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,45,171 اور 1,04,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,85,687 اور 71,63,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 87,27,91,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فوج کا ادارہ ہے، میرے ماتحت ہے، میں وزیر اعظم ہوں، فوج سمیت تمام ادارے میرے کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کو ایسا آدمی ملا ہے جو آخر تک جائے گا اور ان کو چھوڑے گا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اپوزیشن رہنما فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ہٹا دو، میں ان کو این آر او دوں گا تو پاکستان کا مستقبل تباہ کروں گا۔ پہلی دفعہ ہوا کہ چوروں کو این آر او نہیں دیا گیا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے۔ تبدیلی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی تجویز کردہ ترامیم کو مان لیتا تو ان پر کیسز ختم ہو جاتے۔ اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر بلیک میل کیا۔
किया। FATF पर ओपोजिशन ने 38 में से 34 शिकों पर तरमीम मांगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने 1985 में पैसे देकर पार्टी बनाई, स्टैब्लिशमेंट ने साथ दिया, इसे सियासत का क्या पता। PDM अब जो भी करेगी नुकसान इसका अपना ही होगा। ये लॉन्ग मार्च कर लें, पता चल जाएगा इस्तीफा किसको देना पड़ेगा। PDM के इस्तीफों का इंतजार कर रहा हूं। ये समझते हैं लॉन्ग मार्च के ड्रामे करके ये NRO ले लेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजें मशकें अहम हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक चीन एयरफोर्स की मुश्तरका मश्क शाहीन 9 का मुआयना किया। एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पहुंचने पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस की लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। पाक फजाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वराना सलाहियतें उन्हें दूसरों से मुनफरिद करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मशकों से बाहमी इश्तराक ऑपरेशनल हम आहंगी में बेहतरी आएगी। इंटर सर्विसेज हम आहंगी से ऑपरेशनल कामयाबी को तकवीयत मिलती है। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारत बास ना आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। मोदी सरकार ने एक बार फिर अमन पर वार करते हुए LOC के चरी कोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर की गाड़ी को निशाना बनाया। ताहम खुशकिस्मती से इसमें सवार गैर मुल्की मेहमान महफूज रहे। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर भी सवार थे जो सीज फायर की खिलाफवर्जी के शिकार अफराद से मुलाकात करने पोलास गांव की जानिब जा रहे थे। उधर दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की भारतीय खिलाफवर्जियों की मजम्मत करता है। पाक अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को किसी भी मुहिम जोई पर हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से भारतीय मुहिम जोई रोकने का मुतालबा करता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत मूम अज़ाइम से पर्दा उठाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा का कहना था पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this misadventure. We have communicated this to important capitals. We have shared the information that we have picked up with important capitals, and they are fully aware of Indian designs and our resolve. In our opinion, Pakistan feels that if they undertake this misadventure, it will seriously undermine the Afghan peace process, which has moved forward. And if things go wrong, India will be held responsible for this. This misadventure will undermine regions. कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजल रहमान से उनके असासों से तफसीलात मांग ली हैं। नैब पेशावर ने JUI और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान को खत लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं।
नैब ने मौलाना फजल रहमान के बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नून लीग ने सेनेट के कबल अज़ वक्त पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 11 फरवरी से कबल सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल गैर आईनी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में 150 मेंबरान जब इस्तीफा देंगे तो कानून साजी करना आसान नहीं होगा। इस्तीफों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना इतना आसान नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे हमारा अगला ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्के की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में PDM की तखरीबी सियासत की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर-ए-आला कहते हैं खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अफरा तफरी की सियासत का जवाब आवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। मनफी सियासत को 22 करोड़ आवाम मुस्तरद कर चुके। पै दर पे नाकामियों के बाद मुखालफीन को नोश्ता दीवार पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। ये सफर तेजी से जारी और सारी रहेगा। रोकने की कोशिश करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। माजी मैदानी तौर पर बाज़ इलाकों को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हमारी हुकूमत ने यकसा तरक्की का विजन दिया। देहात में खेत से मंडी तक सड़कों की तामीर और तोसी से खुशहाली आएगी। गुलाम सरवर खान का कहना था कि PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। आवाम की हमायत से अपोजिशन अनासर की अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां पर इलाके लियारी में पुरस्के से 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP सिटी सरफराज नवाज के मुताबिक नेपर पतीलदास कंपाउंड में कुछ अफराद आग जलाकर हाथ ताप रहे थे कि इस दौरान एक शख्स ने आग में कुछ उठाकर डाला जिससे धमाका हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब जाए वकवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। फिरदौस आशिकावान कहती हैं पंजाब में सियाहत के मंसूबे टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं पंजाब में 6 सियाहती मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया गया है। कोटली सतियां, चकवाल, जेहलम, सोन वैली और मियां वाली नए सियाहती मराकज मुतारिफ कराए जाएंगे। अटक, फोर्ट मंड्रो और कोहे सुलेमान में नए सियाहती मराकज मुतारिफ कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की खल्फ उठाने के बाद हेडक्वार्टर्स लाहौर आमद। रेलवे पुलिस के ब्रास बैंड ने वफाकी वज़ीर को सलामी। आज़म सवाती का रेलवे हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ महकमों का दौरा, रेलवे के हवाले से ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना था कि रेलवे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे ताल्लुकात रेलवे के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन रेलवे में ना सियासत होगी ना बैरूनी मुदाखलत होगी। हमने इसको कमर्शियल की एंटरप्राइज की तरह चलाना है, जो हमसे नहीं हो सकता। इसे फौरी आउटसोर्स करना है। इस्तेदाद और कारकर्दगी बढ़ानी है। आमदनी का बराह रास्त ताल्लुक एफिशिएंसी से है। उन्होंने कहा कि मैं रेलवे में मैनेजमेंट और ऑटोमेशन तकनीक की कमी देख रहा हूं। रेलवे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना वक्त की जरूरत है। आगे बढ़े और आपको बताएं सूबाई वजीर कानून और कोऑपरेटिव्स राजा बशारत की जेर सदारत इजलास पंजाब एटॉनमस बॉडीज एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन बिल 2019 का मुसव्विदा मंजूर कर लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के कयाम की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया। जनूबी पंजाब में लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग सर्विस अथॉरिटी में तज्जियाती लैब बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। इजलास में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के गैर सरकारी अरकान को डी नोटिफाई करने की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया। पंजाब बैतुल माल कौंसिल के 2 गैर सरकारी अरकान की तैनाती की तजवीज़ मंजूर की गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अरकान की नामजदगी की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया।
टेक्सला म्यूजियम के एक्ट का मुसव्विदा मंजूर। इजलास में द पंजाब रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एक्ट 2020 का मुसव्विदा भी मंजूर किया गया। द पंजाब आप पार्क पार्टी के चेयरमैन, मेंबर्स और सीईओ के सर्विस रूल्स 2020 की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। मर्दान और गिरदोनवा में सीटीडी ने छापे मारे, 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने खैबर के इलाके सिपाह में एक मकान पर छापा मारा। कलअदम लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर अफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली गई। दहशतगर्दों से 6 देसी साख्ता बम भी बरामद हुए और उनकी निशानदेही पर बडबीर में भी कार्रवाई की गई, जिससे दहशतगर्दों के 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर नस बारूदी मवाद फट गया। धमाके से जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कोयटा के नवाही इलाके सब्जल रोड ईसा नगरी में धमाका हुआ, जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके से कुछ देर कबल ही सिक्योरिटी है। मुकदमे में उनके भाई रुकन कौमी असेंबली अजहर कयूम भी नामजद हैं। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिमान का मट्ठू भानके में 267 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जा है। 10 अक्टूबर को जमीन से कब्जा छुड़ा लिया गया था। एफआईआर में 2 पटवारियों समेत 4 दीगर अफराद भी मुलजिमान नामजद हैं। मुलजिमान को 2 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने बलोचिस्तान असेंबली की नशस्त से अपना इस्तीफा मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिया। नवाब असलम रईसानी का कहना है कि जब पीडीएम ने असेंबलियों से इस्तीफा देने का ऐलान किया तो जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों ने मुझसे राबता करके इस्तीफा देने से मुतालिक बातचीत की, जिसके बाद मैंने मुसाफी होने का फैसला किया। चूंकि मैं आज़ाद रुकने असेंबली हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सरबराह पीडीएम को भिजवा दिया है। बात करें सेनेट इलेक्शन की तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के बाद अब जमात इस्लामी ने भी सेनेट इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले कराने की मुखालफत करती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मार्च में होने चाहिए। अगर हुकूमत को जल्दी है तो सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील करे। इमरान खान को पीटीआई नुमाइंदों पर एतमाद नहीं, इसीलिए इनका सारा जोर शो ऑफ हैंड्स पर है। सेनेटर सराजुल हक ने कहा कि हुकूमत को सेनेट की तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन भी कबल अज वक्त कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन और कानून मुआवनाने खसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है और वज़ीर आज़म किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में मुआवनीन ख़ुसूसी के हवाले से असूल तय कर चुका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दोहरी शहरियत वाला मुआवनीन ख़ुसूसी बन सकता है। फैसले में यह भी तय पाया है कि वज़ीर आज़म मुआवने ख़ुसूसी रख सकते हैं। जस्टिस एजाज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दोहरी शहरियत वालों की मुल्क से वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सियासी फनकार सियासी थिएटर लगा रहे हैं। सियासी अदाकारी में बिलावल ने पानामा रानी को पीछे छोड़ दिया।
फिरदौस आशिकावान गुलकार शौकत अली के घर गईं, अयादत की और 2 लाख रुपए का हुकूमत की जानिब से चेक भी दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा कि हुकूमत फनकारों के साथ है, सियासी फनकारों ने असली फनकारों को नुकसान पहुंचाया है। हमारी हुकूमत उम्र रसीदा फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड देने जा रही है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अफगान सूबे गजनी में ख़त्म कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। अफगान सूबा गजनी के जिला गिलान में एक घर में महफिल कुरान की महफिल जारी थी। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी। धमाके से 15 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। WHO की जानिब से गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की फराहमी में अहम पेशरफ्त हुई है। सेहत के आलमी इदारे का कहना है कि अगले साल की पहली छमाही में गरीब ममालिक को वैक्सीन की फराहमी शुरू होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वैक्सीन अब गरीब ममालिक की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। WHO ने मेंबर ममालिक को अहम पेशरफ्त से आगाह कर दिया। सेहत के आलमी इदारे की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अगले साल WHO को 2 अरब कोरोना वैक्सीन मौसूल होंगी, जिसमें से 1 अरब 30 करोड़ वैक्सीन डोनर्स फंड से खरीदी जाएंगी। कौबिस मुहिम में शामिल 190 ममालिक को अगले साल की पहली छमाही से वैक्सीन की फराहमी शुरू होगी। वैक्सीन के बरवक्त दस्तयाबी को मुमकिन बनाने के लिए WHO के वैक्सीन पर काम करने वाली कई कंपनियों से मुआहदे भी हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चीन पर एक और माशी वार कर दिया। 77 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी SMEC समेत 77 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नई पाबंदियों के बाद मज़कूरा कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से लेन देन से पहले अमेरिकी वजारत तजारत से खसूसी NOC की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका में अब तक 275 चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। तस्फिया तलब मसला कश्मीर ने 1947 से अब तक 35 लाख कश्मीरियों को महाहिजरत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। पनाह गज़ीनों के आलमी दिन के मौका पर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय मसालिम की वजह से गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान हजारों कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर को छोड़कर आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक में पनाह लेना पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की मुसलसल रियासी दहशतगर्दी की वजह से गुज़िश्ता 31 बरसों के दौरान 40,000 से ज़ायद कश्मीरियों ने हिजरत की और वो मकबूजा इलाके से बाहर महाजरीन और पनाह गुज़ीनों की हैसियत से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरी इनिंग्स में भारतीय शेर सिर्फ 36 रन पर ढेर। कप्तान कोहली समेत पूरी टीम में से कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड और पिट कमिंस की तबाहकुन बॉलिंग। हेजलवुड ने सिर्फ 8 रन देकर 5 और पिट कमिंस ने 4 विकेटें ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक साबिक विकेट कीपर सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह होंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह और क्रिकेट कमेटी के सरबराह की तैनातियां 3 साल के मुद्दत के लिए की गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जारी करदा एलामिया के मुताबिक मोहम्मद वसीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे
اور اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تاہم پاکستان کپ کے لیے ناردرن کے نئے کوچ کی تقرری کی جائے گی۔ محمد وسیم کا پہلا ہدف آئندہ ماہ جنوبی افریقہ کے خلاف قومی اسکواڈ کا اعلان ہے۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹی 20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹی 20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں آکلینڈ سے ہیملٹن پہنچ گئیں۔ پاکستانی ٹی 20 اسکواڈ بذریعہ بس آکلینڈ سے ہیملٹن پہنچا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرا ٹی 20 میچ اتوار کو ہیملٹن میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے کھیلا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پہلے ٹی 20 5 وکٹوں سے شکست کھانے والی قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں لگ رہا، تاہم حتمی فیصلہ ٹیم انتظامیہ وکٹ دیکھنے کے بعد کرے گی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑیوں نے محمد عامر کی ریٹائرمنٹ پر تشویش کا اظہار